एक मिनट मैं अभी आया हूँ ना। एक साथ में एक साथ So can we have Ranjana the Thank you, Ranjana. हाँ लोग यार एक मिनट Guru, can we have your blood, please? देख ना भाई बोल रहा है तो रोकने के लिए। थैंक यू। ये लाइट मिक्स की है क्या? इसने रेड मारा है। Can we have Jitin ji and Rajesh ji please your pictures? सर यहाँ पे Producers of the song, United White Flag. Can you have the lyricists? So we have Tushar, we have Aziz here. Welcome. Aziz is here. अब भाई मैं पहनी हूँ ऊपर से बुलाया मैं इसीलिए। तुम लोग पहले मार लिए मैं था नहीं। Thank you, Rajesh. Aziz. थैंक यू। एक मिनट यहाँ पे ये साइड में। ये साइड Sir, this side. 1 second. Jitin ji. चलो भाई पीछे हो जाओ थोड़ा। So on this side. What nice smile. Today is a launch. Everybody. One more. Yeah. Thank you. Thank you. Can we just have Jitin ji and Rajesh ji with Ranjana and Tushar? सर हो गया। So we have Sharad joining us in 5 minutes and we'll start the evening. One more. Most of my This is not picture together. Yeah. We'll do it here. We'll do it there. Yeah. Check. I was missing one. Ranjana, can we have you here? In the center, yeah. Yeah. एक step पीछे बस perfect. By थोड़ा पीछे. So yeah, Sharad in the center.
Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you guys. Let's start the evening present here. We are missing Ramji Gulati, the director of the song. He is in Dubai, so I'm sure he's watching us from there. So yes, The sir. song Any Kismat features Sharad Malhotra and Ranjana Sharma. The track delves deep into the sorrow that follows after a couple's breakup, which you all just saw. So that was lovely. Sharad, you're looking. Lyricist Gopi Sidhu. Please can I have all of you on stage? So this is the entire team of Any Kismat. So before we go for the official launch of the song, we just took a look at the song and it's wonderful. I'm handing over the mic to Sharad to start the evening by saying a few words and the experience of the song. I think let the lady start. It's her moment. It's actually our moment. Okay, so thank you guys. Thank you. आप लोग आते हैं हमेशा, मुझे लगता है कि फैमिली आ गई वापस। और स्पेशली जब ऐसा एक मौका होता है कि म्यूज़िक इतना अच्छा गाना तो उसका लॉन्च करते हैं हम लोग, तो हम चाहते हैं जो सिंगर हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जो कास्ट है, कि वो सबसे पहले शेयर हो आप लोगों के साथ। तो बस ये हमारी कोशिश है कि अच्छा गाना है। पहली बार जब मैंने गाना सुना था मैंने कहा था यार गाना बहुत अच्छा है, और सिंगर कौन है? तो किसी ने कहा मुझे कि तुषार है। मैंने कहा अच्छा, तो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि तुषार इज लाइक अ लिटिल ब्रदर। और जब मैं इससे मिला तो मैंने कहा नहीं भाई तुम गा नहीं सकते, बिकॉज लुक्स आर डिसेप्टिव, बिकॉज इतना कूल बंदा है। और इसने मतलब वाकई ही इवेंट्स, इफ यू सी हिम ऑन स्टेज ही इज लाइक अ लाइव वायर, बट एक्चुअली जब मैंने देखा इसे गाते हुए ही साउंड सो गुड। सो थैंक यू तुषार फॉर गिविंग एन अमेजिंग वॉइस। थैंक यू उदित फॉर क्या बोलूँ यार, करता धरता हो, निर्माता हो, सबसे इम्पोर्टेंट भाई यहीं पर है हमारे। सो थैंक यू सो मच गोपी जी, थैंक यू सो मच गोविंदा। Coming to Ranjana, this is like your debut, if I'm not mistaken. So guys, please give her a lot of love. बहुत डरी हुई है क्योंकि इसने कहा था मीडिया आने वाली, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सबसे बेस्ट लोग तो ये लोग होते हैं, अच्छा बुरा सामने बोल देते हैं। So this is like family to me, and now it's family to you also. So yes, that's about it. I think it's now the song is yours. Please give it a lot of love. जितनी हमने मेहनत करी थी हम कर चुके हैं, अब आप लोग प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन वाकई दिल से प्लीज़ वॉच द सॉन्ग। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और एंड प्लीज़ शेयर, क्योंकि हमने बहुत दिल से बनाया है। सो हैंडिंग ओवर टू रंजना। It was wonderfully and honor to work with all of them, co-star like Sharad, Tushar, Udit sir, everyone, Ramji, everyone, they were so wonderful with me. मुझे लगा ही नहीं like it's my debut because उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से support किया। तो yes, I am so great and thankful to all of them. Thank you so much. और मैंने रंजना को बिल्कुल परेशान नहीं किया शूट पर कि मेरी जूनियर है और मैं सीनियर हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा। Let me check the watch. Good evening, everybody. I end up fumbling sometimes with the time. Why I said with the time? Because the time is right. क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गाना है जिसकी एक मुझे लगता है कि मेरे को तो ज़रूरत थी ही, उसके साथ साथ मालिक करे कि गाना आप लोगों के प्यार से बढ़े। ये need of the hour भी है कि that we should come with good songs, really good songs. So we tried. If you see the song, if you notice the song is very nice, very neat, very clean. मतलब हर तरीके से अगर आप उसे देखेंगे तो वो बहुत सुलझा साफ सुथरा गाना है जिसमें बहुत दिल से काम किया गया है। सबने बहुत अच्छा काम किया है। एक गाना बनाने वाला गाना बनाता है, गाना लिखने वाला गाना लिखता है, लेकिन उसके बाद में जब निर्माता निर्देशक की बात आती है, that's what we call the producer and the director, तो उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उनकी सोच आपकी सोच के साथ में मिली है कि नहीं मिली है। तो ये एक बहुत अच्छे से गाना निभ गया है। और of course he is a brilliant actor. I was watching and I was like यार ऐसे होता है because मैं तो गाता हूँ। So the thing is this, a big kudos to Sharad bhai, he's like an elder brother. Ranjana did a fab job, very good job she has done, and गोपी ने बहुत अच्छा लिखा है।
बहुत ही अच्छा लिखा है। गाने की शुरुआत इस आदमी से हुई है, गोपी सिद्धू से। So he's the man behind the song. He wrote the song and he came to us. So that's where the journey actually started. Then Udit Bhai came in the picture and showered us with money. कि तू हो जाए मेरी, मिलते हो हंस के, बड़ी मेहरबानी तेरी, रूते लिखे आए मैं, नाम तेरा मेरे दिल जानी, लगदा अधूरा रह जाना, वो एक तरफा प्यार मेरा, ऐनी किस्मत नहीं मेरी कि तू हो जाए मेरी। Thank you so much. अच्छी तरह तैयार किया विद राम जी गुलाटी। आज राम जी को मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, वो दुबई बैठे हैं, तो बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट बना है और आई होप कि ये आप लोगों को पसंद आए। मुझे तो बहुत पसंद था, तभी इस पे वर्किंग करी, अब आपको पसंद आना चाहिए। थैंक यू। गाना बहुत अच्छा बना है। शरद का मैं पहले से बहुत बड़ा फैन था और ये गाना और हमारे यूट्यूब में और ऐड हो गया, तो बहुत आनंद की बात है हमारे लिए। मैं सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ उदित भाई का और तुषार भाई का और शरद कोई अरे अपने ही लोग हैं सब अपने हैं। और ये गाने की कहानी भी बहुत अलग है। उदित भाई पीठ पे ये गाना सुनाओ तो समझ में आया। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं ये उदित भाई के पैक लगे हुए थे तो फिर मैंने सुनाया जैसे ही गाना ना, कहना ये गाना तो हिट है। फिर उसके बाद तुषार से मुलाकात होती, बस वैसे वैसे चलता गया तो गाना कंप्लीट हो गया। देखिए सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी बनाई हुई है एंड डायरेक्शन आप जी ने ऑफ कोर्स बहुत अच्छा किया है। बेसिक है राइट नाउ रंजना का डेब्यू होता है तो तुषार ने बहुत एंड उदित वी लाइक टू वर्क विद यू इन फ्यूचर। थैंक यू Facing the cameras, everyone. क्या बात है। So this announces the official launch of the song Any Kismat only on United White Flag. Better you can come in the center. Yes. Let's give it up for the song, everybody, please. यार पीछे मेरे लोग भी खड़े, ताली बजा दो यार। I love you. I love you. Thank you. सब मेरे लोग ही बजा रहे हैं। Thank you so much. Lord, before you came in, Rachna was saying the song wouldn't have been possible without your support on set, and she's really indebted for being such a wonderful co-star and giving us so much of confidence and boost. Yes, thank you. And Tushar, गाना भी पूरा नहीं हुआ था and we couldn't get enough. Basically singing every time. थोड़ा रिवर्ब मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ के। शुक्रिया। ऐनी किस्मत नहीं मेरी कि तू हो जाए मेरी, ऐनी किस्मत नहीं मेरी कि तू हो जाए मेरी, मिलते हो हंस के, बड़ी मेहरबानी तेरी, रूते लिखे आए मैं, नाम तेरा मेरे दिल जानी, लगदा अधूरा रह जाना, ओ एक तरफा प्यार मेरा, ऐनी किस्मत नहीं मेरी कि तू हो जाए मेरी, ऐनी किस्मत नहीं मेरी कि तू हो जाए मेरी।
मैंने पहले ही बता दिया है कि इट वॉज सीरियसली वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम सीरियसली ऑनर्ड बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं लाइक रामजी सर, तुषार, उदित सर, शरद, everyone was seriously supporting to me. और हाँ, कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे शूट पे विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज. लाइक पहले ही दिन शूट पे मेरा बाइक वाले सीन पे मेरा पाँव जल गया एंड इट्स स्टिल देयर. वो जो स्टेन था अभी तक वहाँ पे, यू रिमेम्बर दैट. कुछ दाग अच्छे होते हैं. एग्जैक्टली, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं. She wants to make a tattoo. That's a lucky mark. Yeah. Yeah. And one more thing, I will cherish this moment for my life because sitting with these people is like on 9 cloud feeling. So thank you everyone, thank you so much. जी. गाना है यू लुकिंग लवली. हमें जैसे हम एक फिल्म देख रहे हैं और एक पार्ट 2 होना चाहिए. अभी हमें पता चला शायद एक दूसरा पार्ट भी बनने वाला है. मुझे नहीं बताया किसी ने यार. अच्छा राजेश जी ने बोला तो भी होगा डेफिनेटली. मैंने बोला था मैं कंपोजिंग पे लगा हूं. नहीं, आई थिंक बिल्कुल पारुल आपने सही कहा. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक. और जब मैंने अब तक बहुत कम म्यूजिक वीडियोस किए हैं, लेकिन जो किए हैं बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया उसे. दिस वाज वन ट्रैक जब मैं पहली बार सुना, इंस्टेंटली आई कनेक्टेड बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक विच हैज़ अ लॉट ऑफ सोल. और स्पेशली जिस तरह तुषार ने गाया है, यू नो, और उसके बाद राम जी ने डायरेक्ट किया है. एंड यू नो पीपल लाइक इफ़ आई मे से राजेश जी, उदित, एवरीवन, यू नो, रंजना फॉर दैट मैटर. अभी रंजना ने कहा कि टीम बहुत अच्छी है, तो अच्छी टीम कोशिश करती है चीज़ अच्छी बने, यू नो, क्योंकि सबने बहुत मेहनत की है. और हम सब ने कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे नीयत के साथ विद गुड इंटेंशंस हमने कोशिश की कि ये अच्छा प्रोडक्ट बने और लोगों से एंजॉय करें. जब थॉट ऐसा हो शुरू से ही तो चीज़ अच्छी ही बनती है. मुझे याद है कि हम लोग जब आर्मेनिया में शूट कर रहे थे, ईयर 1, फॉर मी इट वाज लाइक अ न्यू प्लेस, आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ अस. और ब्यूटीफुल प्लेस, लवली पीपल, और उसके बाद इतना अच्छा गाना विद राम जी, यू नो, एंड हिज फ्रेम्स, with a beautiful cast, good looking 3 of us, if I may take that liberty today. I think it was a great experience. Thank you so much sir. बहुत मज़ा आया मुझे. और मैं सच कह रहा हूँ, ये एक ऐसा गाना है जिसको मैंने सुना है पहली बार, उसने कहा इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक. ऑडियो बहुत अच्छा है, वीडियो दिखाओ. तो आज फाइनली वीडियो भी इट्स आउट एंड it's out there. You guys can please watch it, like, share, subscribe, give it a lot of love there. मैं चाहता हूँ कि देखिए बहुत मेहनत से चीज़ बनती है, हम सब जानते हैं. एक अच्छी टीम जब आती है बनाने में, और इसमें से कई लोग हैं जिनके आई थिंक मैं कहूँ एक डेब्यू हुआ है, उनकी शुरुआत हुई है इंडस्ट्री में, खास करके रंजना की. सो प्लीज़ गिव अ लॉट ऑफ लव एंड या सो it's a very different role that you've done, you know, very intense and it has a very like deep base of romanticism in the whole song. तो आपका कैसा रिएक्शन रहा जब आप शूट कर रहे थे? आपको लगा, you know, you need to have a different shade of it, you know, there always also when you watch the song later. So did you have anything? See, romance and me obviously go hand in hand because मैंने बहुत रोमांस किया है on screen. Exactly. Let me clear that first. On screen मैंने बहुत रोमांस किया है. और जब मैंने गाना शूट किया, I was doing a show which was completely a contrast. I was playing a warrior. तो उस पूरे एक्शन पैक्ड सीन से निकल कर आके रोमांस करना, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा चेंज था बिकॉज वहाँ मैं तलवारबाजी कर रहा था, घुड़सवारी कर रहा था अपने सेट पर यहाँ बॉम्बे में. और फिर मुझे इन्होंने कहा चलिए शूट करना है 2 दिनों के लिए इन दिस ब्यूटीफुल लोकेशन, अमेजिंग टीम, ब्यूटीफुल म्यूजिक. इट वॉज अ परफेक्ट सेटिंग. यूनाइटेड बैंक ट्रैक पे एक के बाद एक इतने अमेजिंग सॉन्ग आ रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, यू नो, अब आपका जर्नी चल रहा है गानों का बैक टू बैक? लास्ट टाइम थोड़ा स्लो हो गए थे, लेकिन अभी कंटिन्यूस हमारे एवरी 10 days एक सॉन्ग आते रहेंगे नए. Which is good. इसके बारे में एनी किस्मत बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है. ये इट्स लाइक अ शॉर्ट मूवी एंड अभी तो पार्ट 1 आपको इधर पार्ट 1 आया, तो पार्ट 2 भी इसका ऑफ कोर्स लाएंगे हम. सो शरद, दैट्स एन अनाउंसमेंट. थैंक यू सर, थैंक यू. बिल्कुल. बस सर ऐसा है कि मैं मर गया हूँ पार्ट 1 में तो मुझे किसी तरह वापस ले आएगा. We'll do prequel. ऐसा लगे कि मैं वापस आ गया, पुनर्जन्म. ऐसे बहुत हुए मेरे शोज में, इसमें कर दीजिए प्लीज. Or we'll do a prequel. Prequel. Sharath, wonderfully. Thank you. You know, that's you always amazing and what you do. आपका कैसा रहा पूरा recreation, but the whole experience about the song? Now watching it on screen is released today.
See, मेरी जो एक इमेज है इज़ मोर ऑफ ए आई डोंट नो बट दे आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड रॉक स्टार पीपल से कि धमाल करना बिकॉज मेरे को लगता है कि एक आर्टिस्ट का उद्देश्य होता है और होना भी चाहिए कि जो उसके लोग हैं, उसके जो फैंस हैं, जो ऑडियंस है, उनको वो उन 2 घंटों 3 घंटों के लिए और अपने म्यूज़िक से जो भी उनके पीड़ाएं उनके जीवन में चल रही है वो सब भुला करके उस मोमेंट में जिए। ये हर आर्टिस्ट का उद्देश्य होता है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, अपने आर्ट के थ्रू। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा सोलफुल करना चाहिए, मेलोडियस करना चाहिए कि जो मुझे पर्सनली ज़्यादा पता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा फोटे एक्चुअली बैलेड्स है, अच्छा म्यूज़िक है। म्यूज़िक सब म्यूज़िक अच्छे ही होते हैं, आई शुड नॉट से दैट, बट तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छे लिरिक्स मेरे सामने आए जो गोपी ने प्रोवाइड किए। तो उस पर धुन पे काम चलता चला गया। मुझे 1-1.5 महीना लगा इसको ठीक करने के लिए। जाता था, सो जाता था, फिर 5 दिन बाद हाथ लगाता था। करते करते एक उसका खांचा बहुत अच्छा बना, तो मुझे लगा कि अच्छा बन गया है। फिर उदित भाई, देन फिर वहाँ से एक कहानी शुरू हुई कि अब इसको बड़ा करेंगे, इसको इंडिया के बाहर शूट करेंगे, तो मतलब एक्साइटमेंट। फिर उसके बाद में जो प्रकृति की मार कोविड के रूप में पूरे समस्त संसार को देखने के लिए मिली, तो सभी लोग थोड़ा हिल गए उससे, जैसे हम भी हिल गए। सो देन इट चेंज एंड देन वी डिसाइडेड दैट लेट्स मूव द पेस। जब बीच में एक टाइम आया, देन आई वाज लकी इनफ टू बम्प इनटू हिम ऑन रोड, तो having coffee so I was like, wow, this guy is cool, and मैंने like बोल दूँ पहले बता दे क्या बोलना है मेरे so I asked him how popular you are. Seriously? I asked him how popular. So he was like, out of 100 hardly 1 or 2 people end up saying that how popular I am. I was like, and he sounds so genuine and so honest, so there was nothing like that कि you know he's trying to fake it up or make it up, but that was coming straight. एक आईना होता है, आपको साफ शक्ल दिखाता है। तो आप फील्ड में काम करते हैं काफ़ी समय से, तो आपको भी अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। आई वॉज लाइक दिस गाई। मैंने चेकड हिम बिकॉज मैं टेलीविज़न सीरियल्स कम देखता हूँ, उसमें बहुत बड़ा रीज़न मेरी माँ और मेरी ताई जी परिवार की औरतें हैं, क्योंकि वो एक सीरियल 3-3 बार देखती है रिपीट मोड पे घर के अंदर। सो आई वॉज डिसकनेक्टेड एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट हिम। वाओ, ही इज़ बिग, okay, he's humble, wow, and he's bloody talented. Yes, which makes him seriously means great yeah. person. Yeah. तो फिर ऐसे बात बढ़ती चली गई। फिर उदित भाई ने इनके साथ मीटिंग की एंड एवरीथिंग वाज फाइनलाइज्ड एंड वी लैंडेड अप इन अ। सारी बातें काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता कोई मेल नहीं है, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ तुषार, लेट मी बी ऑनेस्ट, इट्स अ ग्रेट टीम। बार बार मैं पारुल से भी कह रहा हूँ कि जब अच्छी टीम साथ में आती है तो बहुत मज़ा आता है, और मज़ा इतना आया कि वो आपको स्क्रीन पे दिखने वाला है। ऑफ कोर्स, सब 100 बातों की एक बात, हमें बहुत मज़ा आया काम करते हुए, और उम्मीद है कि ये गाना जिस तरह तुषार ने गाया है, मैंने और रंजना ने फीचर किया है, जिस तरह यूनाइटेड व्हाइट फ्लैग ने इतना सपोर्ट किया है, उदित भाई, अपने राजेश जी, एवरीवन इज गिवन अ लॉट फॉर दिस सॉन्ग, एंड वी आर होपिंग कि लोगों को ये गाना बहुत पसंद है। मैंने बताया कि गोपी मेरे को फर्स्ट टाइम मिला, तो मुझे ये लिरिक्स बहुत अच्छे लगे, तो मैंने इसको अपने लेवल पे जो बेस्ट हो सके उस पर वर्किंग स्टार्ट करी। तो मैं गोपी के बाद सीधा तुषार के पास गया, तुषार से बात करी। मैंने कहा तुषार, आप अपनी वोकल देखो, इस पर आती है अच्छी की नहीं। तो तुषार की वोकल मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर एबी सरा किया, जिसने तितलिया सॉन्ग किया हुआ है, अफसाना खान के। तो मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, तो मैंने ट्रैवलिंग बहुत करी है लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन में, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बॉम्बे, बॉम्बे से मतलब इस तरीके से। उन दौरान क्या हुआ कि घर पे थे हम लोग, तो मैं, मेरी डॉटर, मेरी मदर, हम तीनों, कसम शो आता था, रिपीटेड शो शरद भाई का। तो मैंने कास्टिंग में सोचा कि नहीं यार, शरद को हम इसमें कास्ट कर सकते हैं, शरद से बात कर सकते हैं, क्योंकि शरद की मतलब एक अलग ही एक ऑरा जो है वो पूरा रोमांटिक हीरो वाला है। तो मैंने कहा यार इस जाएगा। तो फिर मैंने शरद भाई को टच किया, मतलब इनको भी लकीली ये सॉन्ग पसंद आया, मेरी मेहनत। उसके बाद हाँ, उसके बाद चलो कोविड में कुछ अच्छा तो हो गया।
फिर मैंने डायरेक्टर को टच किया, राम जी गुलाटी, उनसे बहुत प्यार है मेरा, तो उन्होंने कहा कि यार और अच्छा कर सकते हैं। मैंने कहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर राम जी ने सजेस्ट करी रंजना कि हम रंजना को कास्ट कर सकते हैं। मैंने ठीक है, मुझे अच्छा लगा। तो एक अच्छी सी जोड़ी बनी, अच्छी सी टीम बनी और मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने में। और इन लोगों ने सबने अच्छा एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया और ये रिलीज पे लेके गए। तुषार का थैंक्स, शरद, रंजना, जतिन जी यूनाइटेड, इनको भी बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग, तभी इन्होंने इस अपने साथ हमें जोड़ा। और मुझे सबसे अच्छी खुशी लगी कि इन्होंने पार्ट 2 भी अनऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। We are in media. Everything we say is official here. आप बताइए, आज पहली बार तो राम जी को कितना मिस कर रहे हैं? राम जी को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। गाना इतना ब्यूटीफुल बना है, 3.5 मिनट के गाने में आप समझ पूरी स्टोरी आ गई है, शॉर्ट मूवी जैसा हो गया। बिल्कुल। और वो देख के हमारा विचार हो अभी हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। ये भी हो सकता है कि राम जी दुबई में वेब सीरीज के पार्ट 2 बनते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट कर मूवीज के पार्ट 2 बनते हैं, लेकिन गाने का पार्ट 2 कभी नहीं बना है। गाने का पार्ट 2 है ना, डेफिनेटली इसका पार्ट 2 बनाएंगे। अभी शरद भाई बोल रहे थे कि मैं रहूँ, नहीं क्यों, शरद भाई मैंने कहा आप गाने नहीं देंगे बिना पार्ट 2। It can't happen without him. नहीं, देखिए पारुल, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बट जैसे हमने कहा लेट्स टॉक अबाउट कमिंग टू द ग्राउंड रियलिटी। अब ऑब्वियसली गाना अच्छा है, बहुत अच्छा शूट हुआ है, गाना आज रिलीज़ हुआ है। अब लोगों को ऑब्वियसली वो गाना उतना अच्छा लगेगा, उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड वी आर होपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड कि उतने लाइक्स आएंगे, उतने व्यूज़ आएंगे, बिकॉज इट्स इन टुडेज़ वर्ल्ड हम देखते हैं कि ओवरऑल गाना कैसे वो रिसीव हो रहा है। अभी तो गाना बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, टीज़र बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, बहुत अच्छा रिसीव हुआ है। सो वी आर होपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड दैट इट्स रिसीव वेरी वेल। आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा? मेरे फ्रेंड्स को मैंने एक्चुअली आज बम्बार्ड कर दिया, बिल्कुल इतने व्हाट्सएप मैसेज भेजे मैं सबको और डीएम्स भेजे कि बेचारे मतलब नहीं भी देखना चाहिए फिर भी उन्होंने देख ही लिया। और सबने बस एक ही बात बोली, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल इमोशनल, इट्स अ सोलफुल ट्रैक एंड इट स्टार्ट्स ऑफ ब्यूटीफुली, इट एंड्स ब्यूटीफुली। जैसे अभी तुषार ने कहा, बहुत साफ़ सुथरा गाना है, इसमें कुछ भी ऐसा अश्लील नहीं है अगर मैं कहूँ, जो शायद आप अपने फैमिली के साथ ना देख सकें। सो इट्स अ ब्यूटीफुल family out and out clean track. And let me tell you, his daughter, Udit's daughter, is our biggest critic. Okay, हाँ, कितनी बड़ी उनकी क्या उम्र क्या होगी? 9 years. And she's the one who says गाना अच्छा है, गाना अच्छा नहीं है, right? Actually, and that's a she fact. said, I think जब गाना रिकॉर्ड हुआ था कि it's a very good track, it's a beautiful track. तो अगर बच्चों को ही पसंद आ रहा है, so you can imagine that we are hoping. और ऐसा मुझे बोला भी कि मैं पापा शाम को रील बना के भेजती हूँ। अच्छा। मतलब अपनी तरफ से वो जी। नहीं, मेरे डायरेक्टर राम जी गुलाटी हैं और अच्छा नहीं, मेरी खुद की बात करें तो फिर वो उसके अलग से हम प्रेस कॉन करेंगे, कोई लंबी बात जाएगी। बट येस, डेफिनेटली एट द मोमेंट आई एम लविंग बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं धीरे धीरे बताऊँगा आप लोगों को। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ भी आ रहे हैं अभी। तो अभी बोलते ना एक टाइम आया है जब बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो मैं पहले कर चुका हूँ, अब रिलीज़ होंगी, अब आप लोग देखेंगे। जैसे आज ये हो गया है एंड आई एम होपिंग कि आगे चलकर भी इन द कमिंग वीक्स आप लोगों से बहुत ज़्यादा मुलाकात होगी मेरी। जी। Your questions are very dangerous, man. Yeah, she's done her homework. You say heartbreak and you laugh. Yeah. Yeah. Yes. Okay. What comes to my mind? Definitely, yaar. I think we've all been through heartbreaks and we've been through great moments in life. So somewhere you kind of connect. अगर मैं कहूँगा नहीं तो obviously बहुत बड़ा झूठ होगा. But artists हैं, emotion से खेलते हैं और सब. All of us out here. And the song has to touch emotions. It has to. See, that's what I'm saying. It's a song which is full of emotions. The way even Gopi Paji's written the lyrics, it's beautiful. मतलब तो आप ऐसा एक गाना सुनेंगे जहाँ पे हार्ट ब्रेक हो रहा है, it'll take you back in time, you know, चाहे जब भी हो, but you'll obviously like to connect and relate to it. गोपी पाजी ने बड़ी अच्छी बात बोली स्टेज पे कि गाना जब बन रहा था तो कैसे बना। हाँ। तो शायद हार्ट ब्रेक की बात की जाए, गाना जब गाते हैं तो कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा माइंड में रहता है? आप बताइए आपका कौन सा वो हार्ट ब्रेक था जिसको देख के आपने गाना गाया था? मैं जब गाना शुरू किया मुखड़ा तो पहला हार्ट ब्रेक याद आया, अंतरे में दूसरा आया
फिर उसके बाद के तीसरे अंतरे में तीसरा आया, तो इमोशंस मेरे चेंज होते गए. सो आई फील सो इट वेरीज, बट फर्क पड़ता है. बिल्कुल. सबके लाइफ में सबका पास्ट होता है, सबके, मुझे नहीं लगता ऐसा हम में से कोई भी इंसान इससे ज़्यादा आगे मैं बोलेगा नहीं तो ये सब आगे यही चाहती हैं वो कि आप बताइए कौन सा हार्ट ब्रेक हुआ आपका. नहीं, इट्स बिन क्वाइट लॉन्ग टाइम, सबकी लाइफ में होता है. और मुझे लगता है लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि इसका आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक्सपीरियंस मिलता है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग टू यू. सो व्हाट टू से, एनी किस्मत नहीं मेरी. It's a perfect, yeah, perfect heartbreak. Yeah. Yeah. So thank you everybody. Thank you for guys. giving time and wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you.